everyone. Hi, this is Irfan and welcome to our Easy Way Learn English. And you watching me on Ocean of Knowledge. This is the YouTube channel, and I'm going to make this video for all of you. And this is a very important video, and you have to watch till the end because it's going to be interesting so much. And it's about figure of speech, poetical devices. As you know, when you're reading poetry in your textbook, then you find after one story after story, prose, and then you find poetry. So when you read out the poetry, then you can feel and you can appreciate the beauty of the poetry, and you find the rhyme and meter, imagination, emotions, like all these forms in the poetries, in the piece of poetry. Okay, so I'm going to discuss about today the figure of speech, which is called in the second way poetical devices. As you know that. So I hope this video is very important, is very essential for all of you, because poetical devices is a form of beauty of expression which is included in all the pieces of poetry. Okay, so I'm going to explain first what is figure of speech. And you know the meaning of figure of speech in Hindi. I hope you know alankar. And we call the second name poetical devices. And this is very important to understand all the topics in figure of speech. There are mainly 7 kinds of figure of speech, but despite of that, there are more poetical devices, but 7 mainly it is included. And I'm going to tell you some figure of speech in this video, and you have to watch it and understand what I'm going to tell you. Okay, so what is figure of speech? Here, figure of speech, poetical devices. You know, here is written: the figure of speech are used to beautify the expressions. They make the thoughts and ideas very forceful, clear, and attractive. The poet used them in order to make the poems ornamental, attractive, embellished, and polished. When you're talking about figure of speech, poetical devices, so we must understand the thoughts and ideas. You know that in poetical devices, when we read out the lines and we find the rhyme and meter, the patterns in the end of the patterns. Each line in the end of the patterns, we find the same word. This is called the rhyme. There are so many different kinds of rhymes also, and I will make the next video, and I will tell you in the next video rhymings. Okay, but I'm going to explain that. What is it? The figure of speech are used to beautify the expression. What is the expression? Beautify the expressions. They make the thoughts and ideas very forceful and clear and attractive. The poet used them in order to make the poems ornamental, attractive, and embellished and polished. So here's defining that. What is the figure of speech? What is it in this figure of speech? Poetical devices. All the lines, the figure of speech. What is the work of the poetical device in poetry, in the piece of poetry? It works as a decorative makeup the form, make up the line. They ornament, figure of speech, they ornament and they beautify. वो क्या करता है उसे क्या? Let me explain in Hindi. ये जो पोएटिकल डिवाइसेस हैं, वो उनके भावों को, उनके विचारों को, जो पोएट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, वो अपने उन विचारों और भावों को क्या करते हैं, उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए उन पोएटिकल लाइंस को राइमिंग के थ्रू, मीटर्स के थ्रू, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा पोएटिकल डिवाइसेस का यूज़ करके जो है वो अपने पोएम्स को, अपने पीस ऑफ पोइट्री को क्या करते हैं, वो बहुत ही फोर्सफुल और बहुत ही क्लियर और अट्रैक्टिव बनाते हैं, बहुत ही आकर्षक, जिसको पढ़ने में हम क्या करते हैं, वी कैन अप्रिशिएट, वी कैन फील द सेंस ऑफ द नेचर, वी कैन फील द ब्यूटी ऑफ द नेचर, एस्थेटिक सेंस। हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस देखने को मिलते हैं जिसमें हम उसको समझते हैं, और वो सारा क्या है, वो हर एक लाइंस जो हमें कुछ दिखता है,
जो हम उसके बारे में अप्रिसिएट करते हैं, या उसको बहुत ही ज़्यादा वो एक अंडरस्टैंडेबल होता है, डीप मीनिंग होता है, तो वो सब एक जो है पोइटिकल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। उसको हमें समझना होता है कि ये कौन सा पोइटिकल डिवाइसेस है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पोइटिकल डिवाइसेस के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में कि इसमें कौन सा राइमिंग वर्ड्स है, इस राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करिए, इसमें रेपिटेशंस क्या है, एलिट्रेशन क्या है, सिमली क्या है, मेटाफोरिकल यूज़ क्या है, मेटाफोरिकल यूज़ होते हैं, सिमली के यूज़ होते हैं। तो उन सभी यूजेस ही जो है किसी भी पीस ऑफ पोएट्री को, पोएम्स को बहुत ही ऑर्नामेंट करते हैं, सजाते हैं, उनको सौंदर्य को, उनकी खूबसूरती को, उस पीस ऑफ पोएट्री खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दिस ऑल दैट अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और सब इसके पहले फिगर ऑफ स्पीच को आगे इसके बारे में कुछ जो इनके काइंड्स है बताने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट इज द पोइट्री। इससे पहले पोइट्री के बारे में जानेंगे कि पोइट्री है क्या। तो बहुत सारे राइटर्स ने, पोइट्स ने अपने अपने कुछ ऐसे कोटेशन दिए हैं पोइट्री के बारे में, कुछ अच्छे लाइंस उन्होंने दिया है कि आखिर पोइट्री को उनके अपने तरीके से उन्होंने उसे फील किया कि पोइट्री है क्या। तो पोइट्री जैसे कि सबसे पहले हमें विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही खूबसूरत लाइन याद आता है, जिन्होंने पोइट्री के बारे में बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली थी, एंड दिस ब्यूटीफुल लाइन दैट कि द पोइट्री इज़ द मोस्ट फीलिंगली बेस्ड ऑन आवर इमेजिनेशन। यानी कि पोइट्री क्या होता है, तो पोइट्री जो है हमारी फीलिंग पे बेस्ड होता है, हमारी जो बहुत ही मोस्ट फीलिंगली होता है, हमारी जो फीलिंग्स है और जो हमारे इमेजिनेशन, जितना ज़्यादा हमारी इमेजिनेशन अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा हम अच्छी पोइट्री लिख पाएंगे। फिर टी एस एलियट ने कहा था फिर कि पोइट्री इज़ अ म्यूजिकल थॉट, और भी बहुत सारे विलियम वर्ड्स ने भी कुछ बोला था, अलग अलग सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तो इस तरह से जो है कुल मिला के विलियम शेक्सपियर का मुझे याद आया, तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने, उनका जो कथन था, उनका जो स्टेटमेंट था पोइट्स के बारे में, जो लाइन थी कि पोइट्री इज़ द मोस्ट फीलिंगली बेस्ड ऑन आवर इमेजिनेशन। सो एंड बहुत सारे इसके एलिमेंट्स भी हैं, पोइट्री के एलिमेंट्स, देयर मेन 4 एलिमेंट्स इन द पोइट्री। वो क्या है, सबसे पहले इमेजिनेशन होता है, द 4 एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, इमेजिनेशन है, इमोशन है, ठीक है, थॉट्स है, एंड राइम एंड मीटर। ये 4 एलिमेंट्स है जिससे जो है पूरा एक पोइट्री का जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। 4 एलिमेंट्स क्या है, तो पहला है आपका थॉट्स, इमेजिनेशन, इमोशन एंड राइम एंड मीटर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, सो लेट्स गो अहेड, लेट्स मूव अहेड। सो मैंने बताया, आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि ये क्या है, देयर आर मेनली 7 काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, बट मैं आपको सिर्फ 5 काइंड्स के बारे में आज बताऊंगा, ठीक है। और जैसे कि सिमली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोलिक यूज, इस बहुत सारे ऐसे फिगर ऑफ पोइटिकल डिवाइसेस हैं। बट जो अभी देख रहा है आपको बोर्ड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मैंने कुछ फिगर ऑफ स्पीच को मैंने लिखा है और उसको मैं समझाऊंगा, और आप लोग बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही ईजियर वे में कैसे मैं सभी वर्ड्स को ब्रेक करके, उनके वर्ड्स को ब्रेक करके कैसे मैं समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। सो सबसे पहला लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सिमली। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे सिमली है। सो सिमली क्या होता है, जैसे कि सिमली जो है, सबसे पहले इसमें देखेंगे एज लाइक, ये क्या है, तो सिमली क्या है, सिमली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच, इट्स अ कंपैरिजन, इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 डिसिमिलर थिंग्स। इसमें जो है 2 असमान चीज़ों के बीच जो है उसका कंपैरिजन, उसकी तुलनात्मक चीज़ों को दिखाया जाता है। यानी इसमें जो सिमली फिगर ऑफ स्पीच है, इस फिगर ऑफ स्पीच में कंपैरिजन होगा, तुलना किया गया रहेगा। इट्स कंपेयर बिटवीन 2 डिसिमिलर थिंग्स। वो चीज़ें होंगी, कंपेयर होगी, बट वो डिसिमिलर, समान नहीं होगा, वो 2 डिसिमिलर थिंग्स होगी। और उसके कंपैरिजन को दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे एज है, लाइक है, सच है, सो है। इन कुछ वर्ड से उनकी कंपैरिजन को शो किया जाता है, जिसको सिम्बलिक यूज़ करते हैं। एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी इन द एग्जांपल्स, यूजिंग एज, लाइक, सच, सो, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स होते हैं। जैसे कि मैं एक फिगर ऑफ स्पीच बता रहा हूँ, आप खुद ही समझिएगा। जैसे कि सीता's ड्रेस इज एज white as snow, सीता's dress is as white as snow। जैसे कि आप इस लाइन में जैसे मैंने बोला, ध्यान दीजिए, सीता's dress is as white as snow। तो इसमें सीता's के ड्रेस को स्नो से कंपेयर कर रहा है। सीता's ड्रेस वाइट के वाइट तो है, लेकिन किसकी तरह वाइट है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो स्नो से, बर्फ से। बर्फ आपको ऑलरेडी पता है कि नेचुरल थिंग्स, और
उसके जैसा कोई वाइट नहीं हो सकता, बहुत ही वो एक, क्योंकि एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल है ना। स्नो वाइट होता है, लेकिन उस वाइटनेस को कंपेयर कर रहा है उसकी ड्रेस से, सिताज के ड्रेस से। तो यहाँ पे यहाँ पे एज वाइट एज स्नो जो है ये क्या हो जाएगा, ये सिमली का पोइटिकल डिवाइस का ये सिमली हो जाएगा, ठीक है, इसको सिमली कहेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, रुस्तम वॉज एज ब्रेव एज लॉयन। रुस्तम एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर था, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो लॉयन था। लॉयन का मतलब पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि लॉयन एक बहुत बहादुर होता है, इज ब्रेव, लॉयन इज अ ब्रेव। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपेरिजन है, यहाँ पे कंपेरिजन दूसरों चीज़ से कह रहा है, यानी यहाँ पे रुस्तम को या ही को लॉयन बताया जा रहा है, लेकिन किसकी तरह, तो सॉरी बहादुर बताया जा रहा है, सॉरी यहाँ पे रुस्तम को जो बहादुर कहा जा रहा है, लेकिन किसकी तरह बहादुर कहा जा रहा है, तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन लॉयन से किया जा रहा है कि वो बहादुर है, वो ब्रेव है, लेकिन वो लॉयन की तरह है, ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, दिस रूम इज एज हॉट एज फर्नेस, फर्नेस में भट्टी होता है, यह रूम जो है भट्टी की तरह बिल्कुल गर्म है, भट्टी की जैसे गर्म है। अगर हम डायरेक्टली अगर बोल दें कि दिस रूम इज फर्नेस एंड ही इज अ लॉयन, तो ये क्या है, एक इम्प्लाइड सिम्बली हो जाता है। इसमें हमें कंपैरिजन के लिए वर्ड्स की यूज नहीं पड़ते हैं, लाइक सच का यूज़ नहीं होता है। इसमें हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट बोलते हैं, इन ए फ्रेज, इन ए वर्ड हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो तो मेटाफोरिकल यूज़ हो गया, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, मेटाफोर के भी यूज़ बताऊंगा। लेकिन अभी बहुत ही दोनों एक दूसरे से ही कनेक्टेड हैं, सिम्बली या मेटाफोर का यूज़ दोनों बिल्कुल एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, लिटिल बिट डिफरेंसेस इन देम। बट यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, दिस रूम इज एज हॉट एज फर्नेस, तो जिस लाइन में एज करके, लाइक करके, सच एज करके, जब एक ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को दूसरे चीज़ से अगर ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर किया जाए, उसकी तुलना की जाए, तो वो क्या होता है, वो सिम्बली होता है। और आप जब पोइट्री पढ़ेंगे तो आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि हाँ यहाँ पे इसको चीज़ को इसमें जो है लाइकनेस दिखाई गई है, इसकी जो है डिसिमिलैरिटीज़ को दिखाई गई है, लेकिन कंपैरिजन है, उसमें तुलनात्मक है, भले ही डिसिमिलर थिंग्स है, टू डिसिमिलर थिंग्स है, अलग अलग असमान चीज़ें हैं, लेकिन उसकी तुलना की जा रही है, तो ये सिम्बली होता है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, मेटाफोर। अभी I've just told you about simile and connected with metaphorical use. तो मेटाफोर क्या है? It's an implied simile. It's a comparison. It's not a comparison. It's a direct comparison in only word, in a phrase. यह सिमिली का ही एक सेकेंड रूप कह सकते हैं, इम्प्लीकेशन है, इम्प्लाइड किया गया है, सिमिली की तरह होता है। बट द कंपैरिजन बिटवीन, टू शो द कंपैरिजन, we don't use the words like simile, as, like, such, so to show the comparison in a thing we only use a word or a phrase. okay, जैसे कि अभी आपने देखा he is as brave as lion, सिमली में वो बहादुर है लॉयन की तरह, बट इसमें he is a lion, इसमें डायरेक्ट उसको बोला जा रहा है, इसमें डायरेक्ट उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक लॉयन है, मतलब मीन्स बात वही हुई कि वो बहादुर है, लेकिन इसमें हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी से, किसी दूसरे चीज़ से, दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं किया जा रहा है, इसमें डायरेक्ट उसको बोला जा रहा है, जैसे इन वर्ड और फ्रेज, एक इम्प्लाइड सिम्बली है जिसमें हम एज, लाइक, ससो का यूज़ नहीं करते हैं, इसको दिखाने के लिए बस एक वर्ड और फ्रेज ही काफ़ी है। दिस रूम इज़ अ फर्नेस, मतलब तो यही हुआ ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि मतलब ये भट्टी की तरह बहुत गर्म है, ये रूम एक भट्टी है, भट्टी तो है नहीं ऑलरेडी, एक्चुअल में वो भट्टी तो है नहीं, वो तो एक बताया जा रहा है कि वो बहुत गर्म है, लेकिन हम उसको ऐसे भी बोल सकते थे कि अगर इसको हम ऐसे बोलते कि दिस रूम इज एज हॉट एज फर्नेस, तो ये क्या हो जाता, ये आपका हो जाता कि ये उस भट्टी की तरह ये रूम गर्म है, तो दैट्स लाइक दैट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, रेपिटेशंस। यू नो repetition, what is repetition? When you read the poetry, when you read the lines of the poetry, when you find the repetition, so what is repetition? In this figure of speech, a word, when a word, a phrase is repeated, when the figure of speech, when you're reading out a line, then you find a word or phrase is repeated, then you can say that this is repetition. And you've always often to see that 2 and 2 makes 4. Let me give you an example. So here's an example, 2 and 2 make 4, and as you're seeing in the example, 2 and 2,
one word are repeated 2 times. 2 is a word, and after the conjunction there's one more time 2 is included here. Okay, the 2 and 2 make 4, यानी कि इसमें जो एक वर्ड 2 है वो 2 बार रिपीट किया गया है। तो इसमें जो है जब कोई वर्ड या कोई फ्रेज रिपीट होता है, कोई भी एक लाइंस, बड़ी सी लाइंस, एक सेंटेंस हो सकता है, एक सेंटेंस का पैटर्न हो सकता है। आप जब पोइट्री पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कोई ना कोई पोइट्री में जो है एक वर्ड्स होता है या कोई एक लाइन होता है जो बार बार रिपीट होता है, एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द स्टंजा, ठीक है, उस स्टंजा के हर एक स्टंजा के लास्ट में वो उसका पैटर्न आता है। तो वो पैटर्न जो है वहीं उसको हम कहते हैं कि ये रेपिटेशन है, जो बार बार जो है उस फ्रेज को, वर्ड को या उस स्टेटमेंट के लाइन को जो है उस पोइटिकल वे में जो है उसको सबसे एंड में क्या किया जाता है, उसको हम रिपीट करते हैं। तो इसको हम रेपिटेशन कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं आप। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है नो स्टर इन द एयर and no star in the sea. आप देख सकते हैं कि you can see that the word no star and after in the air and the next phrases no star is once again is used in the second line. मतलब दूसरे लाइन में भी इसका यूज़ किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं no star in the air and no star in the sea. The phrase no star 2 times are used in that lines. Okay, दो बार यूज़ किया गया है। तो जब कोई वर्ड फ्रेज जब बार बार रिपीट हो तो उसको हम रेपिटेशन कहते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटीथेसिस। इज द लास्ट टॉपिक एंड यू हैव टू बी केयरफुल to understand all the topics. You have to watch it carefully because it's very important. Okay, so watch till the end, and if you liked it, then hit the like and subscribe button. You hit the subscribe button, and to get the next video, hit the notification bell to get notification. Okay, so antithesis. What is antithesis? Anti plus thesis. देखिए बहुत ही सिंपल है। इस वर्ड को हम क्या करेंगे, इसको पहले हम स्प्लिट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद एंटी, उसके बाद से क्या है, एंटी का मतलब आप सभी जानते हैं कि ऑपोजिट होता है, ठीक है ना, उसका विपरीत, उल्टा। एंटीथेसिस, थीसिस तो जानते हैं कि थॉट्स और आइडियाज़ होते हैं। टू ऑपोजिट थॉट्स और आइडियाज़ आर फाउंड इन अ सेंटेंस। जब दो थॉट्स और आइडियाज़ जो है एक ही सेंटेंस में पाए जाते हैं तो उसको हम एंटीथेसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, united we stand, divided we fall, divided fall. Okay, so united and divided, yeah, antithesis, united and divided. So this one is antithesis example. इसमें क्या होता है, एंटी का मीन ऑपोजिट होता है। इसमें दो वर्ड्स जो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ओके, सो इज ऑल द फिगर ऑफ स्पीच टू पोलिटिकल डिवाइसेस, एंड आई टोल्ड यू some different kinds of political devices, and I hope you understand very carefully. So I hope you like it. When you like it, then hit the like, and we'll see you in the next video, and we'll with a new lesson. Okay, so thank you and have a great day.